Welcome students to the first lecture for the chapter Acids, Bases and Salt. These are the contents which we are going to discuss in this lecture. What are acids? Acids are those substances which gives hydrogen ion in aqueous solution. Acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं। एसिड सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. These are very important acids. Now there are two types of acids, mineral acids. First one is mineral acids. Mineral acids are those acids which are obtained from minerals. Mineral means naturally occurring substances. For example, hydrochloric acid HCl is obtained from chlorides of metals like sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, etc. Nitric acid HNO3 is obtained from nitrates of metals like sodium nitrate, potassium nitrate, calcium nitrate, etc. Sulfuric acid is obtained from sulfates of metals, sodium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate, etc. Means these acids are obtained from minerals, therefore these are called mineral acids. Now second type of acids are organic acids. Organic acids are those acids which are present in plants and animals. Most of the fruits are sour in taste due to presence of acid in them. For example, lemon is sour in taste due to presence of citric acid. Similarly, orange contains ascorbic acid, tamarind contains tartaric acid, curd contains lactic acid, vinegar contains acetic acid. We feel irritation when an ant stings due to presence of formic acid in them. जब हमको चींटी काटती है तो हमको इरिटेशन लगता है क्योंकि रेड एंड में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब एक चींटी हमें काटती है तो वो हमारी बॉडी पे फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। नाउ व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वा सोल्यूशन। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं। बेसिस आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. It is a base because when it dissolves in water it gives Na plus and OH minus. Potassium hydroxide KOH. It is also a base because when it dissolves in water it gives K plus and OH minus. Calcium hydroxide, it is a base because it gives calcium ion Ca di positive plus 2 hydroxide ion 2 OH minus. So all these three are bases because when these dissolve in water they give hydroxide ion in aqueous solution. Now the next topic of the chapter is indicators. Indicators are those substances which change their color in acids and bases. इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड एंड बेसिस में अपना कलर चेंज कर देते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. फर्स्ट वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर्स इन एसिड्स एंड बेसिस. सिंथेटिक इंडिकेटर केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड एंड बेस में अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं. देयर आर टू एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन. Methyl orange turns yellow in basic solution and becomes pink in acidic solution. मिथाइल ऑरेंज को जब हम बेस में डालते हैं तो येलो कलर प्रोड्यूस होता है, whereas when it is added in an acid it produce pink color. मीन्स यदि हमको दो सोल्यूशन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है तो हम इस इंडिकेटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जिस सोल्यूशन में ये येलो कलर प्रोड्यूस करेगा वो बेस है और जिसमें ये पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा वो एसिड है. अनदर सिंथेटिक इंडिकेटर इज फिनोल्फथलीन. फिनोल्फथलीन रिमेन कलरलेस इन एसिडिक सब्सटेंस whereas becomes pink in basic solution.
फिनोल्फ्थालीन बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, जबकि एसिड में कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो लाइक मिथाइल ऑरेंज, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। Now second type of indicators are natural indicators. Natural indicators are those substances which are obtained from natural source and change their color in acids and bases. नेचुरल इंडिकेटर नेचुरल सोर्स से मिलने वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड एंड बेस में अपना कलर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लिटमस सोल्यूशन, कैबेज लीव्स, टर्मेरिक एट्सेट्रा। लिटमस सोल्यूशन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड में रेड में टर्न हो जाता है, वेरेस रिमेन अनचेंज इन बेस। सिमिलरली रेड लिटमस पेपर बेस में ब्लू हो जाता है, बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, लेकिन एसिड में रेड लिटमस पेपर अनचेंज्ड होता है। मीन्स लिटमस सोल्यूशन से हम लिटमस पेपर बनाया जाता है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड एंड बेस में अलग अलग कलर प्रोड्यूस करता है। और थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. Olfactory indicators are those substances whose odor changes in acidic and basic medium. इनकी जो स्मेल होती है वो एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल वनीला एसेंस, क्लव ऑयल, अनियन एट्सेट्रा। इन इंडिकेटर्स की जो स्मेल होती है वो एसिड में डिस्ट्रॉय नहीं होती है, लेकिन जब इनको बेसिस में ऐड करते हैं तो इनकी जो स्मेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मीन्स यदि हमको एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करना है तो बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। यहाँ डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिस को अल्कली भी कहा जाता है। फिनोल्फ्थालीन एसिड में कलरलेस है, लेकिन अल्कली में या बेस में इसने पिंक कलर प्रोड्यूस किया है। इस दूसरे डायग्राम में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है जिसने एसिड में पिंक कलर प्रोड्यूस किया है, जबकि बेस में येलो कलर प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स. एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. एसिड्स जो होते हैं मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स बाय डिफरेंट रेट. एसिड्स जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. अलग अलग मेटल्स एसिड के साथ अलग अलग रेट से रिएक्ट करते हैं. हाइड्रोजन एक कलरलेस ओडरलेस गैस है विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू इट. मीन्स जब एसिड की रिएक्शन मेटल से होती है तो एक गैस इवॉल्व होती ही दिखती है, जिसको यदि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इवॉल्व गैस हाइड्रोजन गैस है तो हम उस निकलने वाली गैस के पास भी यदि एक बर्निंग मैच स्टिक लाएँ तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है. तो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द इवॉल्व गैस इज हाइड्रोजन व्हेन अ मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विथ एन एसिड. तो आप उस पर लिखेंगे कि जब एक बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं नियर द गैस अ पॉप साउंड इज प्रोड्यूस. जब मेटल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल का क्लोराइड फॉर्म होता है. जब मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल का सल्फेट बनता है. सिमिलरली जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल का नाइट्रेट फॉर्म होना चाहिए, लेकिन नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए मेटल्स जो होते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं. ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. ये आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आता है कि नेम 1 or 2 metals which react with dilute nitric acid to liberate hydrogen gas. Then you have to answer magnesium and manganese. And one question related to this, why metals do not liberate hydrogen with dilute nitric acid? Then you have to write because nitric acid is an oxidizing agent. Now the next topic of the chapter of this lecture is reaction of metals with bases. Only some metals react with strong bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide to liberate hydrogen gas. कुछ मेटल्स ही हैं जो बेसिस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम. जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 and liberate hydrogen gas.
Similarly, aluminium reacts with sodium hydroxide, which is a base, to form sodium aluminate NaAlO2 and liberate hydrogen gas. Now, what is reaction between metal carbonates and hydrogen carbonates with acids? Carbonates means CO3 double negative, CO3 double minus charge. Hydrogen carbonate means SCO3 negative. Now, metal carbonates and metal bicarbonates, when react with acid, they form salt, water and liberate carbon dioxide gas. जब मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट्स भी कहा जाता है, जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है। सॉल्ट फॉर्म होता है, यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, यदि सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फेट सॉल्ट फॉर्म होगा, साथ में वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। इस गैस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस गैस लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस। ये गैस जो होती है वो एफरवेसेंस के फॉर्म पे लिबरेट होती है। आपने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को ओपन करते हैं या सोडा वाटर बॉटल को ओपन करते हैं तो उसमें डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो वो किस तरह से एफरवेसेंस के फॉर्म पे निकलती है। इस गैस की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इट एक्सटिंग्विश फायर। ये जो होती है वो आग को बुझाती है। तो आपका एक क्वेश्चन आता है बोर्ड पे, नेम द गैस विच एक्सटिंग्विश फायर। दैट गैस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 20 ग्राम मार्बल चिप्स है। मार्बल जो होता है वो एक मेटल का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ पर कैल्शियम का क्लोराइड फॉर्म होगा। मीन्स सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो कैल्शियम क्लोराइड होगा, वाटर फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस जार पे कलेक्ट हो जाएगी बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। मीन्स ये पूरा पहले ऊपर तक पानी से भरा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें एंटर कर रही है तो वो वाटर को डिस्प्लेस करके वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। Now how can we identify the evolved gases कार्बन डाइऑक्साइड गैस? हम कैसे पहचानेंगे कि मेटल के कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन जब एसिड से होती है तो जो निकलने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके लिए हम जो इवॉल्व गैस है उसको पास करेंगे लाइम वाटर में। लाइम वाटर एक केमिकल सब्सटेंस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। उसके एक्वा सोल्यूशन को लाइम वाटर कहा जाता है। When carbon dioxide gas is allowed to pass through lime water, it becomes milky due to formation of calcium carbonate। ये लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाएगा, वाइट हो जाएगा क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा CaCO3। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। बट व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 गैसेस पास थ्रू द सोल्यूशन, यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा देर तक पास करेंगे तो वो मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। ये एक सब्सटेंस फॉर्म होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस जो कि सॉल्युबल होता है, तो मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। Now the next topic of the chapter is reaction of metal oxides with acids। हम मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्साइड्स मीन्स जो होते हैं वो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जो किसी एलिमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से फॉर्म होते हैं। मेटल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब जो होते हैं मेटल्स होते हैं। इनके ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम मेटल के ऑक्साइड्स कहेंगे। मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्मूला अलग अलग, मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मूला अलग अलग होगा क्योंकि मेटल्स की वैलेंसी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है और ऑक्साइड आयन की वैलेंसी 2 है। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO होगा क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है। ये फॉर्मूला मेकिंग आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। अब आप लोगों ने पहले छोटी क्लास में पढ़ा है, जो इसी लेक्चर में आप आफ्टर सम टाइम पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
उस रिएक्शन से यदि हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर एसिड एंड बेस की प्लेस पे, एसिड तो है, बेस की प्लेस पे मेटल ऑक्साइड है एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इट मीन्स ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसका मीनिंग ये होता है कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं। For example, sodium oxide when react with hydrochloric acid, it forms sodium chloride, which is a salt and water. Similarly, copper oxide, which is basic in nature, react with hydrochloric acid and form its salt, copper chloride and water. Here it is clear from the diagram, copper oxide, which is black in color, it react with hydrochloric acid and form blue colored copper chloride. What are non-metal oxides and how they react with base? Non-metals like carbon, sulfur, nitrogen, these elements are non-metals. Their oxides means their compound with oxygen are called non-metal oxides. For example, the reaction carbon dioxide is a non-metal oxide because carbon is a non-metal. Similarly, SO2, sulfur dioxide, is a non-metal oxide because sulfur is a non-metal. Similarly, NO2 is a non-metal oxide because nitrogen is a non-metal. Non-metal oxides react with base and form salt and water. If we compare this reaction with neutralization reaction, acid and base react and form salt and water. Here in place of acid, there is non-metal oxides. It means all the non-metal oxides are acidic. यहाँ इससे ये क्लियर होता है कि जैसे एसिड और बेस सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, तो यहाँ पर एसिड की प्लेस पे नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। इट मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड, इट रिएक्ट विथ अ बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो बेस होते हैं। ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्ट फॉर्म हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। इट मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नाउ द लास्ट topic of this lecture is neutralization reaction. The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. Acid and base react करके salt and water form करते हैं। इस reaction को neutralization reaction कहा जाता है। Acids आपने starting में पढ़ा कि acids वो substance होते हैं जो H+ देते हैं, base वो substance होते हैं जो hydroxide ion देते हैं, OH नेगेटिव देते हैं। यदि आप H+ और OH को जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा H2O। H+ और OH- मिलकर वाटर बनाते हैं। देन एसिड का H+ जब हट गया तो उसका एनायन नेगेटिव पार्ट बचा। सिमिलरली बेस का जब OH हट गया तो उसका पॉजिटिव पार्ट बचा। उस पॉजिटिव पार्ट और एसिड के नेगेटिव पार्ट से मिलकर सॉल्ट फॉर्म होता है। इस एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H+ सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ मिलकर वाटर बना रहा है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na+ एसिड के Cl- के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, दैट इज़ सॉल्ट बना रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड का नेगेटिव पार्ट और बेस का पॉजिटिव पार्ट मिलकर सॉल्ट बनाता है और एसिड का H+ और बेस का OH मिलकर वाटर बनाता है। यहाँ पर एक डायग्राम भी बना हुआ है। HCl डायग्राम के थ्रू भी आपको क्लियर हो रहा है। HCl और NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, जिसको ब्लू कलर से HCl को रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअली ब्लू नहीं होता है वो, ये कलर से आपको इंडिकेट किया है कि ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करके दो नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए कलर को चेंज कर दिया है। मीन्स एसिड एंड बेस रिएक्ट यहाँ पर आपका बना हुआ है, देखिए H+ एंड OH-। H+ comes from acid and OH- come from base, and the remaining part of acid and base react and form salt. That's all. Now in the next lecture we will discuss the remaining topics of this chapter.